حدیبیہ کی مشہور لڑائی جاکیدہ ہجری 6 میں ہوئی، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رقم ریاتم کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ عمرہ کے ارادے سے تشریف لا رہے تھے۔ کفار مکہ کو جب اس کا خبر پہنچی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ مسلمانوں کو مکہ آنے سے روکا جاوے۔ اس لیے بہت بڑے پیمانہ پر تیاری کی اور مکہ کے علاوہ باہر کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شرکت کی دعوت دی اور بڑی مجمع کے ساتھ مقابلہ کی تیاری جو حلفاء سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو حالت کی خبر لانے کے لیے بھیجا، جو مکہ سے حالت کی تحقیق کر کے غصفانہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ انہوں نے عرض کیا کہ مکہ والوں نے مقابلہ کی بہت بڑی بے پیمانہ پر تیاری کر رکھی ہے اور باہر سے بھی بہت سے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلا رکھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرم رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ ایک صورت یہ ہے کہ جو لوگ باہر سے مدد کو گئے ہیں ان کے گھروں پر حملہ کیا جائے، جب وہ خبر سنیں گے تو مکہ سے واپس آ جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سیدھے چلے حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ارادے سے تشریف لائے ہیں، لڑائی کا ارادہ تو تھا ہی نہیں، اس لیے آگے بڑھے چلے، اگر وہ ہمیں روکیں گے تو مقابلہ کریں گے ورنہ نہیں۔ حضور اقدس نے اس قول کو فرمایا اور آگے بڑھے۔ حدیبیہ میں پہنچ کر بریہ بن ورقہ، بڈیل بن ورقہ خزاعی ایک جماعت کو ساتھ لے کر آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ کفار آپ کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے، وہ تو لڑائی پر تلے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ لڑنے کے واسطے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، اور قریش کو روز مرہ کی لڑائی نے بہت نقصان پہنچا رکھا ہے، بالکل ہلاک کر دیا ہے۔ اگر وہ راضی ہوئے تو میں ان سے مصالحت کرنے کو تیار ہوں کہ میرے اور ان کے درمیان اس پر معاہدہ ہو جاوے کہ مجھ سے تعارض نہ کرے، میں ان سے تعارض نہ کروں، مجھے اوروں سے نمٹنے دے، اور اگر وہ کسی چیز پر بھی راضی نہ ہو تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں اس وقت تک ان سے لڑوں گا جب تک اسلام غالب ہو جائے یا میری گردن جدا ہو جائے۔ بودیل نے عرض کیا کہ اچھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ لوٹے اور جا کر پیغام پہنچایا، مگر کفار راضی نہ ہوئے۔ اس طرح طرفین سے آمد و رفت کا سلسلہ رہا، جن میں ایک مرتبہ ارادہ بن مسعود ثقفی کفار کی جانب سے آئے کہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے بھی وہی گفتگو فرمائی جو بودیل سے کی تھی۔ اردہ نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عرب کا بالکل ختم کر دوں تو ممکن نہیں۔ تم نے کبھی نہ سنا ہوگا کہ تم سے پہلے کوئی شخص ایسا گزرا ہو جس نے عرب کو بالکل فنا کر دیا ہو، اور اگر دوسرے صورت ہوئی کہ وہ تم پر غالب ہو گئے تو یاد رکھو کہ میں تمہارا اشراف کا جماعت نہیں دیکھتا۔ یہ طرف کی کم جرف لوگ تمہارے ساتھ ہیں، مصیبت پڑنے پر سب بھاگ جائیں گے،
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पास खड़े हुए थे। ये जुमला सुनकर गुस्सा में भर गए और इरशाद फरमाया कि उनको अपने माबूदात की पेशाब घाट को चाट क्या हम हुज़ूर अक़दस के से भाग जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ देंगे। उर्वा ने पूछा कि ये कौन है? हुज़ूर अक़दस फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है। उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से मुखातब होकर कहा कि तुम्हारा एक कदीम एहसान मुझ पर है जिसका मैं बदला नहीं दे सका। अगर ये ना होता तो उस गाली का जवाब देता। ये कहकर उर्वा भी फिर हुज़ूर अक़दस से बात में मशगूल हो गए और अरब के आम दस्तूर के माफिक बात करते हुए हुज़ूर अक़दस के दाढ़ी मुबारक की तरफ हाथ ले जाते कि खुशामद की मौका पर दाढ़ी में हाथ लगाकर बात की जाती है। साहबा रज़ियल्लाहु को ये बात कब गुआर हो सकती थी? उर्वा के भतीजे हज़रत मगीरा बिन शाब रज़ियल्लाहु अन्हु सर पर खुद दाढ़ी हुए और हथियार लगाए हुए पास खड़े थे। उन्होंने तलवार का कब्ज़ा उर्वा के हाथ पर मारा कि हाथ परे को रखो। उर्वा ने पूछा कि ये कौन है? आपने फरमाया कि मगीरा। उर्वा ने कहा, और गाई तेरी गद्दारी को मैं अब तक भागत रहा हूँ और तेरा ये बर्ताव हज़रत मगीरा बिन शाब ने इस्लाम से कबल चंद काफिरों को कत्ल कर दिया था, जिसके दिन उर्जा ने अदा की थी कि इस तरफ से इशारा था कि गरज उर्वा तवील गुफ्तगू हुज़ूर अक़दस करते रहे और नज़रें बचा कर साहबा अकरम रज़ियल्लाहु अन्हु के हालत का अंदाज़ा भी करते जाते थे। चुनांचा वापस जाकर कफ़ार से कहा कि ऐ कुरैश, मैं बड़े बड़े बादशाहों के यहाँ गया हूँ, कैसर व किसरी और नजाश के दरबारियों को भी देखा है और उनके अदब भी देखी है। खुदा की कसम, मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा कि उसकी जमात ऐसी ताज़ीम करती हो जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात उनकी ताज़ीम करती है। अगर वह थूकते हैं तो जिसके हाथ पड़ जावे वह उसको बदन और मुंह पर मल लेता है। जो बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकलती है उसका पूरा करने का सब को सब टूट पड़ते हैं। उनका वुज़ू का पानी आपस में लड़ कर तकसीम करते हैं, ज़मीन पर नहीं गिरने देते। अगर किसी को कतरा ना मिले तो दूसरे को हाथ से मल कर अपने मुंह पर मल लेता है। उनके सामने बोलते तो बहुत नीचे आवाज़ से, उनके सामने ज़ोर से नहीं बोलते। उनके तरफ निगाह उठाकर अदब की वजह से नहीं देखते। अगर उनके सर या दाढ़ी का कोई बाल का गिरता है तो उसको तबरक उठा लेते हैं और इसके ताज़ीम और एहतराम करते हैं। गरज मैंने किसी जमात को अपने आका के साथ उतनी मोहब्बत करते नहीं देखा जितने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात उनके साथ करती है। इस दौरान मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी तरफ से कासद बनाकर सरदार आना मक्का के पास भेजा। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बावजूद मुसलमान हो जाने के मक्का में बहुत इज्जत थी और उनके मुतल्लिक़ ज़्यादा अंदेशा न था, इसलिए उनको तजवीज़ फरमाया था और तशरीफ़ ले गए। तो साहबा अकरम रज़ियल्लाहु अन्हु के रशक हुआ कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु तो मज़े से काबा के तवाफ़ कर रहे होंगे। हुज़ूर अक़दस फरमाया कि मुझे उम्मीद नहीं कि वह मेरे बग़ैर तवाफ़ करे। चुनांचे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का में दाखिल हुए तो
अबान बन साद ने उनको अपनी पनाह में ले लिया और उनसे कहा कि जहाँ दिल चाहे चलो फिरो, तुमको कोई रोक नहीं सकता। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू सुफियान वगैरह मक्का के सरदारों से मिलते रहे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पहुंचाते रहे। जब वापस होने लगे तो कफ़ार ने खुद दरख्वास्त की कि तुम मक्का में आए हो, तुम तवाफ़ करते जाओ। उन्होंने जवाब दिया कि ये मुझसे नहीं हो सकता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रोके गए वो और मैं तवाफ़ कर लूँ। कुरैश को इस जवाब पर गुस्सा आया जिसकी वजह से उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को रोक लिया। मुसलमानों को ये खबर पहुंची कि उनको शहीद कर दिया। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रकम से आखिर दम तक लड़ने पर बैत की। जब कफ़ार को इसकी खबर पहुंची तो घबरा गए और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को फ़ौरन छोड़ दिया। इस किस्से में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह का और इरशाद हज़रत मुग़ीरा का मारना सहाबा करम अजमाइन का आम बर्ताव जिसको उरवा ने बहुत गौर से देखा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह का तवाफ़ से इनकार हर वाक़ा ऐसा है हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेइंतहा इश्क़ व महब्बत की खबर देता है। ए बैत जिसका इस किस्से में जिक्र है बाक़ियत शजरा कहलाती है। कुरान पाक में भी इसका जिक्र है और अल्लाह ताला सूरह फतह की आयत लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन आयत में इसका जिक्र फरमाया है। पूरी आयत मा तर्जुमा के अनकरीब ख़ातम में आ रही है। अल्लाह आमीन। अल्लाह ताला पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत सहाबा में इस तरीके से जम गया कि अपना जान देने को भी राज़ी हो गए, लेकिन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना छोड़ते थे। अल्लाह आमीन।